जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सयाती मकामात पर लगातार सयाहों का तांता यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है। वही आज हमारे यहाँ पर कुछ फॉरेनर से जो मुलाकात हुई जो यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आए थे। यहाँ पर सयाती मकाम गुलमर्ग के अंदर अगर बात करें, चूँकि कुछ फॉरेनर जो यूनाइटेड स्टेट से यहाँ पर आए थे, जो ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर पहुँच चुके थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने जो है खूब गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ पर वादी कश्मीर की भी तारीफ़ की। तो उन्होंने यहाँ से जाके यही मैसेज दी कि पूरे जो भी सयाह यहाँ आना चाहते हैं वो किसी डर के बगैर यहाँ आ सकते हैं और यहाँ मुख्तलिफ तरह की जो यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर वो ट्रैकिंग भी कर सकते हो। तो फिलहाल आपको सीधे गुलमर्ग ले जाते और दिखाते क्या कह रहे हैं ट्रैक और इस हवाले से। Okay, well, we came here from the United States. We're here initially to do surgery on the children with clubfoot deformity. We did that in August. And we were in Agra for a week operating on the children. And then we came to visit Kashmir afterwards. We had a nice trip. We had a great guide. We went up to the mountain on the gondola ride, went on a hike to the lake, and then we came back together. We had a really nice time. How was your experience in Gulmarg? Fantastic. We had a real good time, and it's a beautiful country. We loved it. Yeah. We love your beautiful country. It's so nice to be here. People have been so welcoming. We went to the Mughal Gardens yesterday. They're beautiful, and we loved going up to Gulmarg. Yes. Gulmarg Mountain. It was beautiful. We love it. Thank you so much. The experience here is wonderful. The mountain is beautiful. The scenery is beautiful. Everyone's so friendly. Food's good. We've enjoyed our stay here. Thank you. Going up to the mountain, we saw so much, and our guide took us up there and allowed us to see so many things, and we really appreciate the beauty. He was great. He took us up there and we took care of us and make sure we didn't get lost. So it was good. So we're here from. We actually came here first to Agra, and then to Amritsar, to Dharamshala, and now we're here in Srinagar. We're staying in a beautiful houseboat over there, and we came here to go see Gulmarg and the mountains, and we wanted to trek up there, go up the mountains. It was beautiful. We went all the way up close to the lake, and I highly recommend everyone coming to Gulmarg to go ahead and trek up over there, taking the gondola rides and see the beautiful country and the mountains, and hopefully if the clouds are not too low, you might be able to see Himalayas on the Pakistan side, which we were able to do. So it was beautiful today. What about hospitality and people of Jammu and Kashmir? Oh, I love the people from Jammu and Kashmir. They're so nice. They're very hospitable. They help us all the time. And the food is great and so different from Amritsar and Dharamshala. So we're experimenting and we're just having a great time. How is your message for other friends who want to come here to Kashmir? Oh, I would highly recommend it because it has all the scenery you want. It has the mountains, the lakes. It's great for outdoors. So if you're a person that loves outdoors activities, this is a place to be at the right time. You have a great time. आज जो ये टूरिस्ट मेरे साथ थे, ये अमेरिकन थे, यूएस से आए थे, तो मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मैं एक्साइटेड हूँ कि आज मैंने पहला ट्रैक किया है उनके साथ। हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये ट्रैक जो हमारे नए जो स्पॉट्स खुल गए हैं यहाँ पर, जैसे सनशाइन पीक है, कांटरनाग है, पहजन है और तोसा मैदान है, हम इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दें, क्योंकि जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर वो यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक करें, ट्रैकिंग यहाँ पर जाएं, क्योंकि आज हमारे गाइड स्टेशन के पास भी जो इक्विपमेंट्स है वो भरपूर अवेलेबल है, अच्छे हैं। ट्रैकिंग की हर एक फैसिलिटी हमने रखी है। बस हम डिपार्टमेंट टूरिज्म से, डायरेक्टर टूरिज्म साहब से अपील करते हैं, फोकस करें, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये बहुत ही अच्छा ट्रैक है। इससे हमारा रोज़गार भी चलेगा और टूरिस्ट भी खुश होकर यहाँ से वापस जाएगा। देश भर में जो नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, तो उसी कड़ी के तहत जिला बड़गाम के जो मेन म्यूनसिपल काउंसिल है, उन्होंने जो यहाँ पर जो टाउन कमेटी है, उन्होंने यहाँ पर जो है बीसी ज़हरा पार्क में एक रैली बनाई और जिनका यही कहना था कि आगे से जो ये मुआशरा हमारा जो ख़राब हो रहा है, जो बुरी लत से जो कि नौजवान आजकल जो ड्रग्स में मुब्तला है, तो उनके लिए जो है एक प्लेटफार्म देखना है कि उनकी जो है इनके बाहर लाना है उनको, और उनमें ये देखना है कि ये लत जो है और माँ बाप पर भी और जो कि सिविल सोसाइटी पर भी ये जिम्मेदारी है। हम लोग
यहाँ पे जो आज खड़े हुए हैं, तो ये सिर्फ इसका मतलब ये है कि ड्रग्स को बैन होना चाहिए। हमारे यूथ जो कश्मीर के छोटे बच्चे नौजवान जितने भी हैं, आज अगर हम देखेंगे तो 99 मैं नहीं कहूँगा 100% जो बच्चे हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ है। तो अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं मेरे ख्याल से उनको ये ड्रग्स छोड़ना है, और गवर्नमेंट को भी सोचना है कि मतलब इतने सारे बच्चे हैं, अगर पढ़े लिखे हुए बच्चे हैं जो पढ़ते हैं वो भी सब ड्रग्स में इन्वॉल्व है, या तो उनको डिप्रेशन आती है, कुछ ना कुछ तो होता है जो ये ड्रग्स करते हैं। जी पेरेंट्स भी है, मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि यहाँ पे जब जैसे कि हमारे यूथ है, हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं अभी, हम जब घर जाते हैं तो घर वालों में जब बैठते हैं, जो अगर हम पढ़ते हैं लिखते हैं अच्छे से, हम पढ़ते भी है लिखते भी है, जब घर जाते हैं तो जैसे हम कोई एग्जाम नहीं आते, डिप्रेशन आता है, तो उसके बावजूद जो आज की यूथ है, ज़्यादा मैं यूथ की बात करूँ, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं। अगर उनको मतलब मेरे ख्याल से उनको पेरेंट्स का भी मेन रोल इसमें होना चाहिए, पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं इसमें नहीं, अगर सपोर्ट्स में जाएंगे तो मेरे ख्याल से मतलब और भी कुछ बाकी सारे एक्टिविटी में जाना है तो ड्रग्स से दूर रहना, क्योंकि ड्रग्स से एक तो इंसान का कैरेक्टर ख़राब होता है, घर वालों की इज्जत पे भी आँच आता है। तो मेरे खिलाफ से गवर्नमेंट को भी इस पे एक्शन लेनी चाहिए। और मैंने पहले ही बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कश्मीर है वो दिन बाय डे इंक्रीज हो रही है, दैट्स अ मेन रीज़न। अभी हमारी जो नशा मुक्त कैंपेन है ये मुझे लगता है 1 महीने तक रहेगी। इसके लिए हमको कैलेंडर आया है, ये मुझे लगता है पूरी वादी में नहीं पूरे शायद हिंदुस्तान में ये चल रही है। इसके लिए कैलेंडर हमको आया है कि रोज़ कोई ना कोई कैंपेन इसमें चलानी है, जिससे कि हम अपने बच्चों को, अपने जो हमारे बच्चों के वालिदैन हैं, हमारे उल्मा हैं, उनको हम ये मैसेज देते हैं कि आप अच्छे से अपने बच्चों की ओर ध्यान दें, इसमें खास विजिल रखें कि हमारे बच्चे किसी गलत राह पे न चलें। नहीं, उनके लिए मतलब जैसे कि हम अपने बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए सोचते हैं, ये भी तो फ्यूचर का एक हिस्सा है। उनके लिए हम ये मैसेज देते हैं कि जैसे आप अपने बच्चे का फ्यूचर के लिए सोचते हैं, आप इसकी ओर भी खास ध्यान दें, क्योंकि ये तबाही यहाँ पूरी वादी में फैल रही है। पहले यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब ये तबाही यहाँ पे भी फैल रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इससे दूर रहे। इसका मतलब ये मतलब है कि जो हमारे ये बच्चों के वालिदैन हैं, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी मतलब मैं ये मैसेज देती हूँ कि आप खास ख्याल रखिएगा कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, घर में जो बच्चे हैं, इनकी ओर खास ध्यान दें ताकि ये इस तबाही में न फंस जाए। आस पड़ोस को भी ये जिम्मेदारी है कि ये जो है इनको जो ये लत लगी हुई है इससे बाहर लाए, और जो कि नशोनुमा खेल कूद और भी जो इवेंट्स हैं उनमें उनको जो है एंगेज किया जाए, ताकि जो हमारी आने वाली जो नस्ल है उन जो है वो भी इससे दूर रहे। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। जी, डोडा में लास्ट 15-20 दिन से केसेस आने शुरू हो गए हैं। हमने स्टार्ट में ही काफ़ी 1.5-2 महीने से बड़ी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन की थी, हमने नाका असर में लगाया, लेकिन ये वायरल डिजीज़ है। तो सबसे पहला केस जो हमें फूड स्टोरेज जो घट है वहाँ से मिला, तो ये इससे लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं पंजाब से ट्रक आते हैं और इनके ज़रिए से यहाँ हमारे फिर एंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और ये स्पोर्डिक केसेस हमारे 10-15 दिन से आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे जो है टोटल जो सस्पेक्टेड केसेस हैं वो 29 रिपोर्ट हुए हैं अभी तक, लेकिन उनमें से ट्रीटमेंट हर केसेस का हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है, और जो एपी सेंटर हैं वो अच्छी तरीके से हमारा स्टाफ जो है वो मैनेज कर रहा है। तो उसमें से हमारे हाफ द केसेस जो हैं 16 केसेस अभी तक फुली रिकवर हो चुके हैं। जी, तो पूरे केस कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर? 29 केसेस अभी तक हैं। तो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? जी, जो लंपी स्किन का जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, वो एज पर सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट जो हम एंटीबायोटिक है, एंटी हिस्टामिनिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो 2-4 दिन में जानवर रिकवर हो जाता है, घास खाने शुरू हो जाता है, उसके बाद आस्ता आस्ता हफ्ते 1.5 हफ्ते फुली रिकवर हो जाता है। हमारे पास सारी किस्म की मेडिसिन अवेलेबल हैं, वैक्सीन्स हमें अच्छी मकदार में मिली हुई है। हम जो मैक्सिमम जो हमारे एपी सेंटर्स हैं 12-13 के करीब जो एपिसेंटर, दैट मीन्स जहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हुई है, उसके एज पर प्रोटोकॉल जो है लंपी डिजीज़ का हम रिंग वैक्सीनेशन करवाते हैं, और हमारे पास वैक्सीन जो है अवेलेबल है। हम फुली तरीके से हमारा वगैरह आप फ्री देते हो? जी नहीं, मेडिसिन हम कुछ % जो है हम मेडिसिन जो है जो हमें दी गई है वो हम फ्री देते हैं, और कुछ % जो है हमारे डिपार्टमेंट जो मेडिसिन आती है 25% पर वो भी हम दे रहे हैं।
लेकिन कैसे जो है उसका कवरेज दे रहे हैं, अवेलेबिलिटी करवा रहे हैं मेडिसिन की। जो गाय वगैरह दूध देती है तो जी। लोगों में भी कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल रही है, क्या वो दूध नहीं, ठीक ये है? टोटली ये दूध जो है इसमें इस बीमारी का ये एडवाइजरी भी निकाली है गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, कि इसका दूध जो है कहीं भी हार्मफुल नहीं है, किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये कम्युनिकेट नहीं हो सकती है, जूनल डिजीज़ नहीं है जो कि इंसानों में ये ट्रांसफ़र हो जाए, बल्कि ये जो दूध गर्म करके पिएं, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, 70 डिग्री पर वायरस ख़त्म हो जाता है, जबकि हम 100 डिग्री पे ऊपर बॉयल करते हैं मिल्क, तो किसी भी किस्म का हार्मफुल इफेक्ट जो है या डिजीज़ का कहीं कम्युनिकेशन का कोई दूध कोई सोर्स नहीं है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा जो हिली एरिया माना जाता जी, है, मैं एक चीज़ बोलूँगा सबने अपने किसान भाइयों को, ये चीज़ है कि जितनी इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अपने एनिमल्स को बचाएंगे, इधर दूसरे जानवरों के साथ मिलने नहीं देंगे, और प्लस ये बड़ी अपने जानवरों को इसकी ट्रांसमिशन जो होती है इसकी मच्छर मक्खी वेक्टर से होता है, तो अगर हम इस मक्खी और मच्छर से जानवर को बचाएं तो हमारे जानवर जो हैं हर तरीके से किसी भी मतलब कि ट्रांसमिशन नहीं होगी, और अपने जानवरों को सेफ रख सकते हैं। जगह 24/7 देख रहे हैं आप। जगह 24/7 के ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मोहम्मद आसिफ आपके साथ। मैं आपको बता दूं कि हालात कैसे भी हों, लेकिन कश्मीर वादी की बात करें तो सयाह लगातार कश्मीर में आ रहे हैं और कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस ज़मन में यूटी इंतज़ामिया की बात करें या एलजी इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाए हैं, बहुत अच्छा कदम उठाया है। कहीं ज़िला के कहीं इलाकों को जो है इको टूरिज़म के ज़ुमरे में लाया। इस ज़मन में हम आज ज़िला शोपियान के जमपथरी इलाके में हैं, जो कि इको टूरिज़म विलेज जो है वो करार दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुदरती खूबसूरती इतनी है कि सयाह अगर एक बार यहाँ आए तो बार बार आने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जंगलात कुदरती सरमाया इतना है, कुदरत ने इतनी खूबसूरती से इसको लैस किया है कि कोई भी सयाह, चाहे वो बैरूनी ममालिक से आए या रियासत से आए, अगर वो एक बार जमपथरी का दौरा करे तो मजबूर हो जाएगा कि हम बार बार जमपथरी जैसे इन खूबसूरत इलाकों में फिर से अपनी फैमिली के साथ जाएँ। नाज़रीन, अगर कमी है तो थोड़ी डेवलपमेंट की कमी ज़रूर है। हालांकि यूटी इंतज़ामिया ने, एलजी इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा जो है ये कदम उठाया है। इन इक़दामात का लोगों ने भी जो है सराहना की है और शुक्रिया अदा किया है। जमपथरी की बात करें तो जमपथरी में कई इलाके ऐसे हैं, जैसे हम आपको बता दें कि गार्डर जैसा इलाका है, या त्राग पथरी की बात करें या कूलर की बात करें, तो यहाँ पे सेहत अफ़ज़ा मकामात है, और यहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो जाती है तो यहाँ के आसपास के सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ के नौजवान हैं उनको रोज़गार मिल सकता है। मैंने विज़िट किया है यहाँ जमपथरी केलर में, डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, जो एक काफ़ी खूबसूरत अच्छी जगह है। मीडिया के साथ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के ऑफिशियल्स यहाँ पे आए हुए हैं इस एम के साथ, इस मकसद के साथ कि इस टूरिज़म प्लेस को जो रिसेंटली नोटिफाई हुई, इसको प्रमोशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी ऑफबीट प्लेस है। मेन स्ट्रीम जो मीडिया में है, चाहे यहाँ लोगों को इस जगह के मुतलिक ज़्यादा कुछ का इल्मियत नहीं है, तो हमने ये एक कोशिश आज की है कि आपकी ताउन से, आपकी वसासत से इस प्लेस को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और लोगों को बताया जाए कि ये कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ क्या कौन कौन से पोटेंशियल एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हो सकती है और लोग कैसे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। हम आए हैं यहाँ आज जमपथरी के साथ साथ जो एडजेसेंट कुछ खूबसूरत जगह है, जैसे कोलर है और काडर है, इसके साथ साथ जो ऊपरी इलाके हैं कुछ त्राग पथरी, काफ़ी खूबसूरत जगह है। ट्रैकिंग के लिए ज़बरदस्त ये है, इसमें एवेन्यूज़ है, कैंपिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए। तो रिसेंट जो गवर्नमेंट का डिसीजन आया है, इसको नोटिफाई करके जो टूरिज़म प्रमोशन के लिए इसमें काफ़ी अब आवश्यकता है, प्रमोशन होने की ज़रूरत है, और लोगों को ये दिखाने की ज़रूरत है कि कितनी खूबसूरत जगह यहाँ पे है अवेलेबल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ इको टूरिज़म के इनिशिएटिव्स के तहत इस प्लेस को मेन स्ट्रीम प्रोमिनेंट एक जगह एज अ टूरिज़म प्लेस बनाने की कोशिश।
हमने आपको भी बताया था कि शोपियान में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आज तक अच्छी नहीं रही। हम बैकवर्ड हर चीज़ में रहे। ये जानते हो कि शोपियान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया इन द कश्मीर। तो इस कश्मीर का इतना ब्यूटीफुल इलाका जो है पूरा शोपियान का, तो उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। टूरिज्म के हवाले से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसमें गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या डीसी हो, जो भी हो, तो ऊपर से नीचे तक इनको एक दर्द है शोपियान की कि शोपियान को किसी न किसी तरीके से टूरिस्ट मैप पर लाया जाए। ये इसी का नतीजा है। और आपकी भी इसमें एक बहुत बड़ी आपने बहुत बार, मुझे लगता है कि हम देखते रहते थे, हर बार आपके जो चैनलों से आता था, लोकल चैनल आप जो करते थे, आपने एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें ये किया। आपने अपने फेसबुक पे, आपने अपने चैनलों पे इसकी खूबसूरती, मगर रोड की खूबसूरती, त्राक पत्थर की खूबसूरती, कोलर की खूबसूरती, कैलर की खूबसूरती, गॉर्डर की खूबसूरती वक्त से दिखाया। तो शायद टूरिज्म वालों को भी इस पर नज़र पड़ी और आपका भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं जहाँ तक मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, उसने ये किया, उसके साथ साथ मैं आप लोगों का भी मशकूर हूँ कि ये आप लोग हैं, आप लोकल्स हैं, आपने भी एक कोशिश की कि इसको टूरिज्म मैप पर लाने के लिए कुछ अलग है। रोज़गार यहाँ पे कमा सकते हैं। चाहे जैसे हम गुलमर्ग, पहलगाम में देखते हैं कि वो अपने घोड़ों के ज़रिए जब घुड़सवारी वगैरह उससे अपना रोज़गार कमाते हैं, या कोई हट डाले या छोटी छोटी शॉप्स वगैरह या बाकी गाइड का भी काम कर सकते हैं। तो कई तरह के अवसर हैं यहाँ पे इस चीज़ को लेके कि जो नौजवान हैं, आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह से नौजवान जो हैं समाजी बुराई में जो है मुलविस हो चुके हैं, या ड्रग्स की बात करें या बाकी जो सोशल इविल्स हैं उनमें मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन टूरिज़म स्पॉट या इको टूरिज़म विलेज के बाद एक अच्छा अवसर मिल सकता है ज़िला शोपियान के। हालांकि 3-4 गांव ऐसे हैं जिनको इको टूरिज़म विलेज जो है उनका दर्जा दिया गया है। तो एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि यूटी इंतज़ामिया की तरफ से ये बहुत अच्छा कदम है और यहाँ के नौजवानों को एक अच्छा अवसर मिल सकता है अपना रोज़गार कमाने के लिए। इस डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन शोपियान के इश्तराक से हम ज़िला JK24/7 की टीम यहाँ पे आई हुई है और हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क को हम ये दिखाना चाहते हैं कि ज़िला शोपियान के कई इलाके जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और जिनको इको टूरिज़म विलेज करार दिया गया है वो भी कितने खूबसूरत हैं। जमपथरी में हमारी पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन शोपियान के साथ आई हुई है और हम आपको वीडियोस में भी दिखा रहे हैं कि जमपथरी इलाके में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो कितने अच्छे हैं। अगर सयाह एक बार आए तो वो बार बार आने पे मजबूर हो जाएगा। JK24/7 के लिए जमपथरी शोपियान से मोहम्मद आसिफ। महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी अनाउंस हो चुकी है 23 सितंबर की। कल जिस तरह से देर शाम को LG प्रशासन ने ये छुट्टी डिक्लेयर कर दी और इसके खुद गवाह बने युवा राजपूत सभा के सदस्य और उन्हीं के साथ साथ भाजपा के नेता जो राजभवन पहुंचे और वहां से खुशखबरी लेकर जो बाहर आए। उसके बाद हर जगह जश्न का माहौल देखा गया। खासतौर पर अगर जम्मू खित्ते की बात करें तो जम्मू खित्ते के हर एक जिले में ये जश्न मनाया जा रहा है। सांबा जिला में भी यहाँ जश्न मनाया गया युवाओं की तरफ से, तमाम सांबा के लोगों की तरफ से। और उसी के चलते आज अमर क्षत्रिय राजपूत सभा सांबा की बात करें तो यहां राजपूत सभा में जो आप प्रतिमा देख रहे हैं महाराजा हरि सिंह जी की, वहां पर पुष्प अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि भेंट की गई और असल मायनों में अब मान सम्मान जो वो महाराजा हरि सिंह जी को मिला है, जिसको लेकर लगातार हर एक डोगरा ने संघर्ष किया कि छुट्टी होनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, प्रशासन ने ये छुट्टी अनाउंस कर दी है। तो अमर क्षत्रिय राजपूत सभा सदस्य तमाम जहां मौजूद हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या संदेश देंगे और LG प्रशासन को क्या इनका संदेश रहेगा। तो फाइनली छुट्टी अनाउंस हो चुकी है। संघर्ष एक बड़े स्तर पर किया गया, आपके युवाओं ने भी, तमाम लोगों ने संघर्ष किया और छुट्टी अनाउंस हुई है। अब क्या कहेंगे, किस तरह से धन्यवाद करना चाहते हैं आप? हम तो अपने वाइस गवर्नर साहब का जो है धन्यवाद, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश के बाद ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के ये छुट्टी अनाउंस की है और उन्हीं का ये योगदान है। नहीं तो ये छुट्टी के लिए हमारा कई 30-35 साल से ये संघर्ष चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट जो थी उस वक्त उन्होंने किसी ने भी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं दी थी। लेकिन अभी जो इन्हें अभी छुट्टी मिली है इसके लिए सभी को बहुत खुशी है और पूरे जम्मू में हमारे लोग बड़े खुश हैं और अपने गवर्नर साहब का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ के लिए कंसिडरेशन किया और जम्मू में महाराजा हरि सिंह के जम्मू स्टेट और कश्मीर स्टेट को महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का
जो है वो सैंक्शन किया। लेकिन आप मानते हैं जिसको कि संघर्ष अगर किया जाए तो हर संघर्ष में जीत जरूर हासिल होती है? बिल्कुल, संघर्ष जो है वो लगातार रहे, उसमें ब्रेक ना हो, तो कभी ना कभी जरूर उसकी जो है कुछ लोगों में जोश भर जाता है और वो आखिरी तक पहुंच जाता है और लोगों को जो भी है संघर्ष पूरा हो जाता है। और आपके जो युवा राजपूत सभा के सदस्य हैं उन्होंने लगातार वहां पर अनशन जो है वो कायम रखा और एक उनको आश्वासन मिला, उस आश्वासन पर वो टिके और कहीं ना कहीं वो आश्वासन एक यकीन लग रहा था, एक सच्चाई लग रही थी और फाइनली वो यकीन जो है वो असलियत में तब्दील हो गया। हाँ, बिल्कुल, ये तो आज से नहीं है। मैं अभी पूरी डिस्ट्रिक्ट में मीटिंगें कर रहा था, हर जगह लोगों ने यही बोला है कि जो 14 तारीख का और गवर्नमेंट ने की तरफ से बोला गया है कि 14 तारीख के बाद हम इसके बारे में अनाउंस करेंगे और सबको ये भरोसा था, क्योंकि ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं करती कि आप उठा देंगे भूख हड़ताल को और बाद में छुट्टी नहीं डिक्लेयर करेंगे। हमें जिस रोज़ उठा दिया था उसी रोज़ से हमारे मन में आ गया था कि अभी छुट्टी जो है ये मिल जाएगी और ये छुट्टी मिल गई है। चलिए, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे क्या संदेश आपका रहेगा तमाम लोगों को, क्योंकि संघर्ष किया है, एक जीत हासिल हुई है और एक जीत ये न सिर्फ एक कम्युनिटी बल्कि हर एक डोगरा की जीत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पूरे J&K यूटी के नागरिक हैं, सारे लोगों के लिए आज एक बड़े सम्मान की बात है कि आज महाराजा साहब के एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनका ये दिन रिकग्नाइज़ किया गया है। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम सब डोगरे हैं, हम सब एक ही राजा के नागरिक हैं। हमें ये चाहिए कि हम ये दिन उनके जो बताए गए अच्छे उन्होंने काफ़ी अच्छी सीखें दी हैं, उन पे चलें ताकि उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएं। बिल्कुल, तो ये आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के सदस्यों द्वारा महाराजा हरि सिंह जी को। उनकी प्रतिमा पर ये फूल मालाएं चढ़ाई गई हैं और जो छुट्टी का ऐलान कल हुआ उसके बाद से लगातार जो जश्न हर एक जगह पर मनाया जा रहा है, उसी में अगर देखें तो सांबा का जो योगदान रहा वो भी एक सराहनीय रहा। सांबा के युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपना योगदान दिया, इस संघर्ष में आहुति दी और ये संघर्ष कामयाब हुआ। और अब महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन यानी 23 सितंबर की छुट्टी घोषित हो चुकी है, जिसको लेकर तमाम सभा के सदस्यों ने एलजी प्रशासन का धन्यवाद किया है, युवा राजपूत सभा के सदस्यों का धन्यवाद किया जिन्होंने ये संघर्ष को आगे तक बढ़ाया, एक सीमा तक पहुंचाया और महाराजा जी को अब पूरी तरह से मान सम्मान मिला है और मान सम्मान मिलना भी चाहिए था, जिसको लेकर एक जद्दोजहद की और अब वो जद्दोजहद कामयाब हुई है। तो हर जगह जश्न का माहौल देखा जा रहा है और सांबा में भी जश्न हर जगह पर मनाया जा रहा है छुट्टी घोषित होने के बाद। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, J24/7 न्यूज़ के लिए।